Rinku ma'am. Welcome to you talk show. So Rinku ma'am, over to you. Okay. A very good evening to one and all present over here. Hi Gitanjali, how are you? Since long we couldn't meet, so only a telephonic talk we are having. How are you, dear? Gitanjali, can you hear me? Gitanjali, hi, can you hear me? Hello, Gitanjali, can you hear me? By the time Gitanjali comes, so I am here to you, Rinku ma'am. So I think Gitanjali is come. So it's a great opportunity to be in this platform. So we will be having a great time, and I will be welcome definitely the host of the event and Rinku ma'am and Gitanjali. So over to you guys. Yeah, Gitanjali has come. Sorry, Gitanjali, I have taken your seat. So yeah. Hi, Gitanjali. Uh, Hi, Gitanjali. Well, can you hear me? Yes, you're audible. Fine. So how are you, dear? Since long we couldn't meet each other, only a telephonic talk and a Exactly. phone call was working on Exactly. to it. So how are you? I'm all good, ma'am. Because of this pandemic and the lockdown, we are all, it's like home arrest. So everything is fine, anyways. Fine. What about the situation? If we say all good and all fine at home, I just wish each and every family should be very good and happy. It is only the thing is that the surroundings are not at all favorable, and therefore, and there are many things that comes up. This is the reason that we thought let's have a talk and meet each other, at least not in other way, not physically, but in this way. So, and there are many changes that has come up in the life of the people. That is a very big issue, and I think All in One has come up with some of the new concepts, all of us over there. We just want to share and had a talk and what all things can be done in a best manner way that can be done. Okay. So our founder members, I think they have joined. Gitanjali, well, Varsha is there, and Jayanti Chandrayan is there. Myself, Rinku Bose is here. So we all are the founders of All in One. Well, if we say that, what is all in one? The very first thing, what is that comes up as what is all in one? Well, the name as suggests over there, it is everything. All in one means we get everything, especially talking about from the toddlers to the teenagers and to the above ages over there. Anything that comes up, the experiences that we are having over here, and we can share, and at least the challenges today's parents, especially they are facing, and it is a very problematic thing, and day-to-day life as it is becoming worse and worse. Not only talking about the medical facilities, not talking now talk about the upbringing of the children, the atmosphere of the house and all. So this is all we are dealing with that all in one gives the education one to one. We give the prioritize to the children over there right from the very nursery to the 12th. Not only that, above also if any counseling is needed over there, that is all we give our full support. There are trainers over there who can counsel to the any problem that comes up with the children, the teenage, especially talking about because they are confined in the four walls. If we talk about even the toddlers and all, simply all the members are over there. So we have come up many more things. We have the cooking classes, we have the storytelling classes, we have the yoga classes, reading club we are having, career counselors we are having. So we have come up with many things. So the platform which we are trying to give to the people is that sitting at home, we're just a phone call away, and we can move on to whatever the problems, we can hear it, and to the best of our level, we can sort it out. That is all in one. And as the days will move on over there, many more things comes up. Experience, of course, counts over there, and we'll try what best can be done for the upcoming generation, especially we are talking. Now, when we talk about the upcoming generation,
as the topic of today suggests, that is real today's real challenge is how about the parenting, how to deal with the children. Either you talk about the toddlers or you talk about the teenagers. Every parent having a very big question mark how to come up with, how to cope up with the problems of these children. So therefore, our this topic suggests that is really the parenting is really a challenge in today's scenario. So we are going to come up with that. We are having an eminent guest over there, two guests we are having. They'll all will introduce once they join us over there. In the meantime, I'll introduce the founders of the All-in-One. The first we're talking about Gitanjali Rawal, Rishi herself. She is having almost teaching toddlers over there. Not only that, she has almost 15 years of experience she is having and teaching over there. My TESOL, ISL, IELTS working. She's working as a trainer and definitely she's teaching over the CBSE and ICSE board. She has taught. Teaching is such a thing. See, this is just an introduction that we are giving. It's just for the person what he or she is doing. But every person has a natural instinct to guide. Either you talk about the small ones or you talk about the elder ones. Now coming to the next, the second founder, we are having the Varsha Bhatia. She has an experience of 6 years in teaching in CBSE and ICSE. She is a yoga trainer and a master's in Vedic maths. So that is another, we are having a co-founder with us, very eminent one. The third one that we go to the very big experience she is having, that is Jayanti Chandrayan. She is having a 26 years of teaching experience in Hindi and Sanskrit. She has also taught economics. That's really a very wonderful thing that about her. And of course, she is a writer, a fiction writer. She writes the stories as well as the poems also. And myself, Rinku Bose, having almost 19 plus years of teaching and in various schools and colleges. And I believe that working hard and honesty are the key roles which can anything you can fight back with. And anything, and for me, I believe that if you really want to avoid something, avoid any odd situation, is the best way to face it. That's all. And I hope the BPs up over there, the eminent guests have joined. I think, Gitanjali, can you please take over the dais? Yes, exactly. Today we have Mrs. Geetendra Kaur Chhabra. She's a very renowned psychiatrist and the counselor in Indore. She's been working with CAT as a counselor also. And we are really happy to see you, Mrs. Chhabra, over here. Welcome to the our live chat show. Thanks for introducing me. Thank you so much, and we are really happy and we are very glad to see you over here. And our second guest is Mrs. Geetika Sharma Khandel. She's basically a dentist in Bangalore, and she's been a nutritionist, and apart from that, she's a career counselor and life coach also. So, Geetika, I welcome you on behalf of All-in-One team. Thank you, Gitanjali. So, like first of all, here we have gathered to talk about the basically the current situation. It is not about the COVID, but it is mostly about the parenting and the children, because you know children are they are like our future. So in this scenario, like all the children are sitting at home, and even it is really difficult to handle such type of children. Like if they are fighting, if they don't have anything to do, and most of the time they are really engrossed with the mobile phones or the electronic gadgets. So, Mrs. Chhabra, what do you think about this situation? Because nowadays, like everybody is busy with the online classes or the work at home through the internet. We all are using that. So what do you think? मैं जो बात करना चाहूंगी वो मैं अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, आप लोग सब टीचिंग के फील्ड में हैं और उस तरह से नॉलेज रखते हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करना चाहूंगी
कि जिस तरह से क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, है ना, वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स को चीज करते हैं, पेरेंट्स करते हैं या बच्चे जो अपनी बातों को बोल रहे हैं, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। हालांकि बहुत बुरा सिचुएशन है, कोविड एक बहुत बुरी सिनेरियो है। हम पहले भी जो है जब ये चीजें नहीं थी तो गैजेट्स के लिए पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे, है ना। बच्चे जो है ऑनलाइन मतलब ये वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, चैटिंग करने में लगे हुए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो वो बता ही रहे थे। इवन कोचिंग में भी, स्कूल में तो ठीक है, स्ट्रिक्ट माहौल रहता है, कोचिंग में पीछे बैठ के बच्चे यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें थी। लेकिन आज एक बहुत अच्छी चीज हुई है ये कि सडनली एक दिन अचानक से आपको बोला जाता है आपका स्कूल बंद हो रहा है ना। हम लोग प्रिपेयर नहीं थे इस चीज के लिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं था। बस ये थोड़ी सी एक चीज थी कि वो फेमिलियर थे, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी क्लासेस हो जाती थी। एकदम सडनली आपको बंद कर दिया जाए आपका स्कूल, एक बच्चा जा रहा है इतना, और एकदम से उसको रोक के और अब तुमको ऑनलाइन पढ़ना है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज ये साबित हुई है। अगर शायद नहीं होता तो हम सोचे क्या होता कि साल भर से डेट ऊपर हो गया, मोर देन 1 ईयर, तो बच्चा अगर इन सब चीजों से आज दूर होता तो क्या होता। तो ये एक पॉजिटिव चीज तो है। अब दूसरी चीज ये जरूर हुई है कि बच्चा जो एजुकेशन उसकी स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन हुई है, बच्चों को पेरेंट्स ने कुछ और एक्स्ट्रा कैरिकुलर स्कूल के अलावा कुछ चीजें ज्वाइन कराई, और वो एक्टिविटीज भी उसकी ऑनलाइन हो रही है। बच्चा बाहर खेलने नहीं जा सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो वो बैठा है, फ्री है, तो वो क्या करेगा, वो फिर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इसी के आगे रहेगा। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो आए हैं। जो सबसे ज्यादा चीज आई है शुरू में ना, कि बच्चे हेडेक, सीवियर हेडेक के साथ में आए थे। Exactly, yes. स्कूल बच्चों को सिर दर्द बहुत तेज होने लगा था। मेन चीज कि आप एक तो ऑनलाइन उस पर रहे हैं, फिर आप लोग खुद बहुत अच्छे से टीचर्स आप ये चीज समझते हैं कि हम जैसे आपका 40 to 45 मिनट्स का पीरियड होता है, उस 40-45 मिनट्स में जो क्वालिटी स्टडी टाइम होता है वो 20-25 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो इतना आप सिर्फ कर सकते हो। तो अब जब बच्चे को घंटा घंटा 2-2 घंटा जब वो बैठने लग जाएगा ऑन स्क्रीन पे, तो इतना कंसंट्रेशन, इतना फोकस होकर उसको देखना, सुनना, समझना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और ठीक है, ये जो स्क्रीन के अपने नुकसान होते हैं वो तो है ही, तो वो बच्चे जो है एक सीवियर हेडेक वाली चीज हो रही थी, उनका कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दे आर अनेबल टू फोकस देमसेल्फ, वो कंसंट्रेशन का स्पॉन ऑफ अटेंशन बड़ा छोटा हो रहा था, नहीं वो कर पा रहे थे। और फिर जो बच्चे सिंसियर होते हैं वो लोग, एक फियर वाला भी चीज थी, क्योंकि एकदम एंड टाइम है, स्पेशली 12th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उनके लिए ये चीज हो रही थी कि उनका हेडेक वाली एक प्रॉब्लम, उसमें उनका कंसंट्रेशन पुअर हो रहा था, अटेंशन की उनके साथ में दिक्कत होने लगी थी, उसकी वजह से उनके अंदर इरिटेशन पैदा हो रहा था, बच्चे एग्रेसिव हो रहे थे, गुस्सा करने लग गए थे, है ना। और फिर जो बिहेवियर इश्यूज में आ जाता है, एस्केपिंग टेंडेंसी हो जाती है, दे डजंट वांट टू स्टडी, वो भागना चाहते हैं कि उसके लिए नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चीज जो है एक सबसे बड़ी चीज हुई कि जो प्रॉब्लम हम लोग ये देख रहे थे कि ये वाली एक एजुकेशन के सिस्टम में ये प्रॉब्लम जो आ रही थी बच्चों के साथ में, और दूसरे इस एजुकेशन प्रॉब्लम के साथ में ये जो हम कंसंट्रेशन, अटेंशन वाली बातें जो कर रहे हैं, फोकस न कर पाना, बच्चे का उतना अटेंटिव होके सुन नहीं पाना, उनको ग्रास्प नहीं कर पाना, ठीक है, उनको बच्चा जो है फिर अगर जब टीचर पूछ रहा है, कर रहा है, तो उसके पास में एक्सप्रेशंस की कमी होने लगती है, जो एक स्कूल सारी चीजें सिखाता है, कराता है, वो बच्चा नहीं कर पा रहा था ये सारी चीजें, और उसकी वजह से बच्चा डिमोटिवेट हो रहा था, स्टडी से भागना चाह रहा था। ये सारी चीजें तो उनके साथ में हुई हैं। तो एक एजुकेशन की ये वाली प्रॉब्लम्स आई, इनके साथ में कुछ हम बिहेवियरल इश्यूज देख रहे थे, जैसे एंगर और ये इरिटेशन तो एक था ही उसमें। पर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीजें हम प्रैक्टिकली जब बात करते थे, पेरेंट्स से डिटेल मांगते हैं, तो वो चीजें कैसी होती हैं, आपका स्कूल शुरू होता है, आप किस ढंग से तैयार होकर स्कूल जाते हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बच्चा सोया होता है, 7 बजे क्लास है, 6:45 बजे उठेगा, ठीक है, वॉशरूम जाएगा, लिंक ऑन करके बैठ जाएगा। तो सोकर उठकर हमको एक चाय बनाने में हमारे लिए, अपने को फ्रेश करने के लिए उठ के थोड़ा सा, कितना भारी वो काम लगता है,
तो आप सोचिए कि बच्चा जो सबसे हेवीएस्ट वर्क है, मेंटल कितना उसको पढ़ने के लिए मेंटल एफिशिएंसी की जरूरत है, तो एक बच्चा जो है अभी उठता है और उठते से ही वो जो है लिंक ऑन करके बैठ जाता है। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी थी? तो ये बिहेवियरल इश्यूज हमको जो उनके साथ में देखने में आए हैं कि बच्चा उठता है, मुंह भी नहीं धोया है क्योंकि नहीं अब जल्दी से ऑनलाइन क्लासेस करनी है। तो एक पेरेंट्स के लिए यहाँ पर है कि एक 15 साल तक हम बच्चे को स्कूल सिखाता है, आपको स्कूल समय पे पहुंचना है, राइट? और स्कूल शुरू होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे की प्रोसेस है, आना जाना टाइम नहीं ले रहे हैं हम उसमें, है ना? कि स्कूल शुरू होने के पहले लगभग 1 से 1.5 घंटे की प्रोसेस होती है, तब बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है फॉर स्टडीज, है ना? और यहाँ पर 5 मिनट में कैसे वो मेंटली, कैसे मशीन थोड़ी स्विच ऑन किया और अब जो भी उसको चालू किया है स्क्रीन ने और उसके अंदर जाते जाने लग जाएगा। Yeah, exactly. Being इस a तरह की teacher, प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बच्चों की हैबिट्स एकदम से चेंज हो रही थी और पेरेंट्स उसको कोप अप नहीं कर पा रहे थे, बच्चे उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, ये वाली दिक्कत तब भी आई थी और आज भी है। क्योंकि अब बच्चे Right. जो हैं, आप बहुत अच्छे से देखते हैं कि हर बच्चा अटेंटिव नहीं होता है क्लास में, है ना? कुछ मिसचीवियस होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई तो सिर्फ हाइपर एक्टिव बच्चे या इस तरह के जो बच्चे थे जिनका स्टडीज में रुझान कम है, वो ही नहीं, सभी बच्चे जो है गड़बड़ करने लग गए थे। आप यहाँ पे चालू कर दो, ठीक है? उस समय टीचर्स और स्कूल सिस्टम सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी जल्दी डेवलप नहीं हो रहा था कि वो सब बच्चों को वॉच कर पाए। तो बच्चों को बस सिर्फ ये है कि आप अपनी प्रेजेंस लगाइए और अपना वीडियो ऑडियो ऑफ करके बैठिए। अब बच्चा क्या कर रहा है ना? वो लगा हुआ है, अपना चैटिंग कर रहा है, मोबाइल पे लगा है, दूसरे बच्चों के साथ कर रहा है, इवन मतलब दूसरे बच्चों को लेकर गलत कमेंट्स कर रहा है, इवन टीचर्स को लेकर आने लगा है। शुरू शुरू में तो ये चीज आई, फिर जब थोड़ा सिस्टम सब ठीक हुआ, स्कूल वालों को समझ में आने लगा, तो वो कंप्लेंट स्कूल में पहुंचने लगी थी। वो बच्चों को पकड़ लिया जाता था कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और उनको स्कूल में बुलाकर, तो कुछ बच्चों की फिर वो स्कूल से कॉल आते थे कि ये, फिर डिस्टर्बिंग हुआ क्योंकि पूरे बहुत बड़ी बात हो गई कि बच्चे ने इस तरह के कमेंट्स को मोबाइल पे डाला है ना, चैटिंग में ऐसे डाल दिया है। तो ये बच्चों के साथ में फिर उसमें जो बच्चा कुछ ठीक था, सिंसियर बच्चे होते हैं जो इन मस्तियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मस्ती के साथ में हो जाते हैं ऐसे, तो वो बच्चे बड़े डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, क्योंकि ये सब चीजें उनके लिए बहुत एम्बेरेसिंग हो गई कि ये सब हमारे साथ हुआ है। तो इस तरह की चीजें, बहुत तरह की ये प्रॉब्लम्स हमने ये देखी है कि ऑनलाइन स्टडीज में ये चीजें हमारे साथ में आई हैं। जो एक सबसे नॉर्मल एक छोटी सी चीज होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, अभी टोडलर्स को लेकर आप बात कर रहे थे, बच्चे को आप लोग जब सबसे पहला रहता है मॉन्टेसरी की, आपकी 2 चीजें खास होती हैं, एक आप गुड हैबिट्स का चार्ट लगाते हो, है ना? Yes. सबसे पहली पोएम सिखाते हो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। Yes, and being parents, हाँ वही चीज हम लोग कई बार कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हाँ, like being the parents, we are like हम लोग रात को देर से सोने जा रहे हैं, या हमारा जो डेली शेड्यूल है थोड़ा सा लेट हो गया, तो बच्चे हमारे साथ सोने के लिए उनका सोने का टाइम शेड्यूल और लेट हो गया, और लेट हो जाए। एग्जैक्टली। और मॉर्निंग में भी यही सीन हो जाता है। मोबाइल देना था, आपकी जरूरत बन गई थी बच्चे की वो, हाँ, तो आप right. अब बच्चा अपने रूम में क्या कर रहा है, आप क्या कर सकते हो? तो बहुत मिसयूज किया बच्चों ने, उसके जो है स्लीप वाला वो जो एक पैटर्न है बहुत डिस्टर्ब किया, जो कि आप लोग जानते हैं एज अ पेरेंट्स, अगर हम बात करें कि हमारे बच्चे को कल सुबह जाना है स्कूल, हम रात को कितने सिंसियर रहते थे कि बच्चा, हम बाहर कहीं पार्टी वार्टी में भी जाना है तो बहुत अपने आप को ध्यान रख के कि नहीं बच्चों का सुबह स्कूल है, बच्चों को 10 इंस्ट्रक्शंस दे के जाते थे कि बच्चे सो जाए समय पे। वो सारी चीजें सारी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो वो एक स्लीप पैटर्न जो है बहुत बुरा हो गया है बच्चे का, कि आप रात को जो है टाइम से सो नहीं रहे हो, नींद आपकी 11-12 बजे सो रहे हो और सुबह उठते से आप लिंक ऑन करके अगर बैठ जाओगे, हाउ टू यूर स्टडी, ये बहुत डिफिकल्ट काम था। तो ये ऐसा ये पैटर्न तब का नहीं है, अभी तक चल रहा है कि हम लोगों ने जो हमारी रूटीन है, जो हम इतने टाइम सीखते हैं और बच्चों के साथ हम पेरेंट्स भी डिसिप्लिन में रहते हैं, वो डिसिप्लिन वाली चीज चली गई। और जो एक टीचर का डर होता है वो बहुत एक अच्छी चीज होती है ना? बहुत सारे Yes.
मिस्टीरियस होते हैं, लेकिन वो क्लासरूम में टीचर के डर से सिंसियरली बैठे रहते हैं, उनको अच्छा लगे या ना लगे, पर वो बैठे रहते हैं और वो बहुत अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पर वो सब चीजें, बच्चे जो है बहुत बेखौफ से हो गए, थोड़ा ये मुश्किल वाला समय है और इस तरह की चीजें आई हैं बच्चों पे। एक ये एजुकेशन और हैबिट वाली बात के साथ में खास चीज एक नोट करने में आई है कि बच्चों का दो एक अपोजिट बिहेवियर रहता है, कि जैसे एक बच्चा हाइपर एक्टिव है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हाइपर एक्टिव बच्चों को सबसे ज्यादा आप ही डील करते हैं। एक बच्चा होता है वो लेजी होता है, डल बच्चा है ना, एक हाइपर एक्टिव है, एक डल है, दोनों कंट्रास्ट हैं। लेकिन हम ये दोनों सिम्टम्स एक ही बच्चे में देखने लगे कि बच्चा जब ऑनलाइन स्टडीज में रहता है, या ऑनलाइन, सिर्फ हम स्टडी वर्ड नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो ऑनलाइन ही जुड़ा हुआ है आजकल सारी चीजों के साथ, वो इन्हीं गैजेट्स के साथ में लगा हुआ है। तो ये जो रेज है, या जो इनका जो ये सिस्टम जो काम करता है, या बच्चा जो वीडियो गेम खेलता है, या जो उसमें आप वॉइसेस होती हैं, वो किस ढंग से बच्चे को जो उसकी ब्रेन वेव्स को चेंज करती हैं, तो बच्चे का जो है बहुत हाइपर एक्टिविटी बच्चे की बढ़ जाती है, बच्चा हाइपर हो जाता है। और दूसरी चीज क्या हो गई कि वो बस इस एक मशीन के सामने बैठा हुआ है, तो वो एक डल है ना, बैठा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। आप मतलब हर बच्चे को देखो वेट बढ़ा हुआ दिखेगा, और इतनी मैडम 10 किलो वजन बढ़ गया है स्कूल की एक साल में, है ना। ये एक चीज बच्चों के साथ में हो गई। फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, पर बहुत ऐसा नहीं है ना कि हम घर में रहकर उसको मेंटेन नहीं कर सकते थे, लेकिन बच्चों ने वो चीज नहीं करी। और अगर एक एडिक्शन जैसी चीजें हो गई हैं, आज अगर आप बच्चे को इस चीज से समझाने जाओ, इससे दूर रखने को लिए बोलो, तो वो एग्रेसिव हो जाते, रियली एग्रेसिव। ओनली इरिटेशन नहीं रहता है, वो गुस्सा करने लग गए हैं, उनके अंदर वायलेंस थोड़े बच्चा सिम्टम्स होने लगते हैं, चीजों को थ्रो कर देगा, लात मार देगा, किसी चीज को किक कर देगा, कोई भी चीज फेंक देना, मोबाइल फेंक देना, इस तरह की चीजें ये बच्चों के अंदर जो है एक चीजें जो है गैजेट्स के यूज में बिहेवियरल इशू टाइप का ही है, जो बिहेवियरल इशू भी है, जो हाइपर बिल्कुल बच्चों के अंदर जो है एंगर को एग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे। I want to add something in this. Actually, what happens nowadays, parents most of the time they say कि online classes के कारण screen time बहुत बढ़ गया है, लेकिन at the same time even the parents only they are allowing the child to keep the mobile in the hand, और बच्चा भले ही वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है, या तो वो यूट्यूब देख रहा है, या either that child is chatting with a friend, या फ्रेंड्स के साथ में वीडियो कॉलिंग है। तो ये वाली चीज भी थोड़ा सा आई थिंक कि पेरेंट्स को एक चीज सोचनी चाहिए कि आप बच्चे को क्वालिटी क्या चीज दे रहे हो, भले ही वो ऑनलाइन है, और अगर जो चीजें जरूरी नहीं है वो चीजें पेरेंट्स उस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं पेरेंट्स ये चीजें, लेकिन चीज क्या होता है कि हमें बच्चे बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, है ना, इतने तुरंत स्विच कर लेते हैं। पेरेंट्स ने अपनी तरफ से अच्छा माहौल दिया, बेचारे बाहर सेक्रीफाइस करते हैं कि तुम बच्चे अंदर बैठो, उनको रूम दे दिया, कंफर्ट दे दिए कि भैया उसकी तो क्लास चल रही है। अब बच्चा अंदर क्या कर रहा है, पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं। और हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी इनके पास में ये चीजें, तो वो उसका मिसयूज तो हो ही रहा है। एग्जैक्टली तुरंत उस चीज को वो करते हैं, पर ऐसा नहीं है, उस चीजों को चेक तो किया जा सकता है। Exactly. Well, Mrs. Chavda, I would like to come up with a question. How parents are responsible for this? Same thing I was asking. Yes. How parents are responsible? देखिए, हमारा मोटिव ये नहीं है, see it's whatever we had a conversation, या हमारी जो बात होती है, हम सिनेरियो जो आगे पीछे हम देख रहे हैं, it's okay fine कि बच्चे के पास कुछ है ही नहीं, they are confined into 4 walls, classes भी ऑनलाइन है, अगर कुछ गेम्स खेलना तो ऑनलाइन है, फिजिकल एक्सरसाइजेस नील है, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी आज हम जो देखते हैं। या मिसेस चावड़ा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग अप इन दिस नोटिस कि दादा दादी घर में होते हैं, वो माहौल नहीं है कि जब हमें बचपन में दादा दादी कहानियां सुनाया करते थे, आज वो माहौल ही खत्म हो गया है। तो व्हाई डोंट वी कम अप, आवर टॉक शो इज रिलेटेड टू दिस, व्हाई डोंट वी कम अप विद सम गुड पॉजिटिविटी कि बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाया जाए, या फिर महाभारत की इतना सुंदर मतलब वो है प्लेटफॉर्म है हमारे पास,
religion, different religions we are having. Yeah, talk about the Christianity, or you talk about any the Parsis, we are talking about the Mohammedans and all. Hindu, खुद का हिंदुइज्म इतना बड़ा एक मतलब रिलीजन है जिसके इतने सारे स्टोरीज हैं. आज मैं ये पूछने जाऊँ 11th-12th के बच्चों को, अगर मैं पूछती हूँ, they are unaware of it कि शूर्पणखा का नाक क्यों काटा गया था. Actually they don't know. उस चीज को जो तोड़ मरोड़ के YouTube में जो देखा जाता है, they have come up with that knowledge. बेसिकली ये काम किसका होता था? ग्रैंड पेरेंट्स का. दादा, इफ यू रिमेम्बर, हम जब छोटे थे तब दादा दादी की कहानी दूरदर्शन पे आती थी, विक्रम बेताल आते थे, 32 पुतलियां आती थी. आज कुछ भी नहीं है. चंपक चाचा की कॉमिक्स वगैरह थी, चाचा चौधरी की थी, ट्विंकल थी. आज बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते. क्या पेरेंट्स, do you don't think कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, we don't think that we parents are responsible for this कि हम वो चीज को बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, और यही कारण है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होके वो गैजेट्स की ओर दौड़ रहे हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम कि हम पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सबकी हम बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल में, अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं, हम बच्चों को कैसे बोल सकते हैं कि तुम मोबाइल ना देख. ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी चीज है. आज अगर मैं कहूँ, बच्चे जितने एडिक्टेड नहीं है, उससे ज्यादा पेरेंट्स एडिक्टेड. आप जब फैमिली बैठो, कहीं पर भी बैठो, सब मोबाइल अगर खोल के बैठ जाओगे तो यू आर रोल मॉडल ऑफ योर चिल्ड्रन. आपको बच्चा देख रहा है, आप उसको कैसे मना कर सकते हो? आज अगर अभी मैंने बात आपसे कही कि बच्चे को हम स्कूल जाता था, टाइम पर जाता था, टाइम से उठता था, है ना, 1.5 घंटे पहले की प्रोसेस थी, और आज बच्चा क्यों 10 मिनट पहले उठता है और स्क्रीन के सामने बैठ जाता है? ये तो पेरेंट हमारी ही खुद की लापरवाही है. ये हमारी गलती है ना. और अगर इसको हम नेगेटिविटी हटाएं, भाई कोविड अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज हो रही है, लेकिन हम इसको कैसे पॉजिटिव यूज कर सकते थे? क्या हम वो जो डिसिप्लिन स्कूल चला रहा था इतने साल से, हम सब पढ़े हैं उसमें, राइट? हम सब उस चीज से बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भी उसी माहौल में, मतलब ये पैटर्न तो हमारा भी था कि हम स्कूल उठ के जाते थे तो नाश्ता करके जाना है, नहा धो के जाना है, यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो गेट बंद हो जाना है. ठीक है, हर स्कूल में अपने अपने स्कूल में प्रेयर होती थी, थोड़ा सा मेडिटेशन कराना, थोड़ा सा पीटी एक्सरसाइजेस, राइट? आज हम पेरेंट्स ने क्यों वो चीज घर में फॉलो नहीं करी? अगर हम आज क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट्स शिकायत करते हैं. बिल्कुल, अभी भी एक कॉल है जो मैंने परसों का अपॉइंटमेंट दिया, वो ही यही है कि आप मैडम इसको बताएं कि अपनी रूटीन सही करें, है ना, कितनी लेट ये उठ रहा है, ये ऐसे से कर रहा है. तो ये रोज की प्रॉब्लम है, ये वाली चीज है. तो हम ही उठाते थे ना बच्चे को अगर 7 बजे उसकी बस आती थी तो 5 बजे माँ उठती थी ना, फादर उसको छोड़ने जाता था बाहर उसके ऑटो या बस तक के लिए. आज बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस हो गई तो हमने क्यों 5 बजे उठना बंद कर दिया? हम भी तो अब लेट उठ रहे हैं. ठीक है, तो ये वाली चीजें फिर हमें रिस्पॉन्सिबल है ना. हम कैसे बच्चे को बोल सकते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या बिना ब्रश किए या बिना कुछ खाए पिए और वो स्क्रीन के आगे बैठ रहा है. बच्चा रात से उसने लिया है, अब उसको सुबह ब्रेकफास्ट की जरूरत है, उसने कुछ खाया नहीं है. आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इनिशियल एनर्जी के लिए हमें जरूरी है. जो बच्चे को भूखा उठकर वो बैठ गया है तो नींद उसकी पूरी नहीं है, खाना उसको पूरा नहीं है. तो हम पेरेंट्स सबसे पहली चीज, आज अगर बच्चों का सारा डिसिप्लिन बिगड़ा है और ये ऑनलाइन स्टडीज की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, इसको पेरेंट्स के पास में एक बहुत अच्छा टाइम था कि वो इस चीज को, बच्चे की हैबिट्स को, जो कि वो स्कूल कैरिकुलम में, बच्चा स्कूल कैरिकुलम था, फिर उसके बाद में उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी, प्रोजेक्ट्स थे, बच्चा कोचिंग जाता था, उसके पास में टाइम नहीं होता था. लेकिन आज बच्चे के पास बहुत सारा टाइम. डेफिनेटली आज मदर के पास घर में बहुत काम बढ़ गया है उनके पास में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, उस चीज को मैनेज किया जा सकता था. बच्चों के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा सकती थी कि वो भी अपनी माँ की हेल्प करें काम में, साथ में जो आप संस्कारों की. एग्जैक्टली, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि जब हम घर पे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ये सारी चीजों की बात करते हैं, जैसे अभी सारा वर्कलोड जो है वो घर की औरतों के ऊपर आ गया है, तो आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम थिंग फ्रॉम डॉक्टर गीतिका. आप इस चीज को किस तरीके से, लाइक हम लोग
किस तरीके से इन चीजों को और घर में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं, या यू कैन से कि जो एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन वाली चीज जो आजकल मिसिंग हो गई, हम उसको किस तरीके से हम अपनी लाइफ में वापस से ला सकते हैं? अभी जो कोविड के कारण पेरेंट्स कैन गिव द सफिशिएंट टाइम, और पेरेंट्स खुद ही उस चीज से भाग रहे हैं। नहीं, और अभी तो ना पेरेंट्स के पास टाइम डॉक्टर गीतिका, हाँ, वर्षा मैम को जयंती मैम कुछ कह रही है उनको। नहीं, मैं ये Yes, कह yes. रही थी कि ना जाने अभी ये कितने लंबे समय तक अभी और ऐसा ही सिनेरियो चलने वाला है, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वर्षा मैम आप भी कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं भी यही बोल रही थी कि पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो हम लोगों की आपस की गैदरिंग नहीं हो पा रही है। पर जब अब ये इतना अच्छा मौका मिला है अपने पास, इसका पॉजिटिव वे में इसको उठाया जाए, Yes. तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल एटमॉस्फेयर घर में रहेगा, तो बच्चे ऑटोमेटिक ही ये जो स्ट्रेस में आ रहे हैं, ये जो ऑनलाइन का जो बच्चों के ऊपर टेंशन है, ये ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। थोड़ा कॉपरेशन पेरेंट्स का चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही हैं, आपकी सोच और पेरेंट्स की सोच में बहुत डिफरेंस रहता है। एग्जैक्टली, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है, बट हाँ। साथ में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी दैट इज हम लोग बच्चों के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे यस गीतिका। यस मैम। ठीक है, तो the question is really very relevant, and of course I would like to thanks to all the people from the all-in-one, and I feel pleasure कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं कुछ अच्छे लाइट्स दे सकती हूँ इस बच्चों पर। तो मैं बता दूं कि आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स एंड वन इज 4 years and 10 years। तो जो चैलेंजेस आप लोग बोल रहे हैं वो मेरे घर में हो रहे हैं, और आई थिंक सभी के घर में हो रहे होंगे। तो मैंने ऑफ कोर्स इसका वे आउट निकाला है, कुछ आंसर्स निकाले हैं। तो मैं इन आंसर्स को 3-4 फॉर्म में बताऊंगी। एक इज फिजिकल एक्टिविटी, and second is mental attitude, and third is about the routine, what is the घर में मैंने कैसे रूटीन कुछ चीजें चेंज की बिफोर और आफ्टर, ऑफ कोर्स बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था, और लास्ट नॉट द लीस्ट इज फूड, timing of the food and what food. So the thing is everything starts from me, but being a positional, मैं अपने बच्चों पे ये नहीं थोप सकती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो मैं कहूँ वो ठीक है। तो फ्रॉम पोजिशनल टू परमिशन मोड, मतलब बच्चे इन परमिशन आ जाए कि मेरी बात सुने, उस चीज के लिए मुझे लीड फ्रॉम फ्रंट करना पड़ेगा। आई कांट बी लाइक कि स्टैचू की बच्चे खा लो, बच्चे बैठ जाओ, उठ जाओ, नहा लो, इतना टाइम हो गया। So everything starts from me. So I should be lead from the front. The second is the physical activity. Of course, before physical activity थी, बच्चे भाग के बस में जाते थे, स्कूल में थे, एक ग्रुप था, एक माहौल कुछ और था। और अभी ऐसा हो गया कि we are in the nuclear family, we are just 4 people, and of course confined to the what Rinku ma'am is talking about, ki confined to the 4 walls, and situation is totally different. But the what I have changed in the after is कि 1 अप्रैल से लास्ट ईयर से मैंने एक्सरसाइज का एक स्टार्ट किया, और इसमें मैंने भी अपने इसमें लीड फ्रॉम फ्रंट किया, और मेरे अपने फ्रेंड्स लोगों का एक ग्रुप भी बनाया, और क्या बोलते हैं, हम लोग भी एक्सरसाइज करते हैं। इनफैक्ट मैं और मेरे बेटा हम लोग अलार्म से एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सरसाइज करते करते भी हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। मम्मी का कॉल आ गया, कभी इसका कॉल आ गया, कहीं और चले गए, और बच्चे भी आज मन नहीं है। तो टू हैव अ फन वी हैव टू बिकम अ किड, क्योंकि हमारे और बच्चों में एक जनरेशन गैप है। वो जनरेशन गैप को हम कभी भी फिल नहीं कर सकते, बट एज से फिल नहीं कर सकते, पर मेंटल एटीट्यूड से हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दैट इज द वन थिंग। वही चीज मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी। लाइक गीतिका, आपके बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा सा हम अपने एटीट्यूड के अंदर बचपना लाके, या हम लोग अपने बचपन की चीजें उनके साथ में करके उनके साथ में एक रेपो बना सकते हैं, जो रेगुलर स्कूल टाइम में हम लोग नहीं कर पाते थे, या हम लोग उन सारी चीजों को करने के लिए क्वालिटी टाइम ढूंढते थे। एंड एट द सेम टाइम, लाइक वी हैव फ्यू फ्रेंड्स ओवर हियर, इनफैक्ट जिनके थोड़े से टीनेजर्स बच्चे हैं, या थोड़े और बड़े बच्चे हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, वी कैन नॉट से कि छोटा है कि बड़ा है, बट so at the same time जो बड़े बच्चे हैं, like if I talk about my son,
usually what we do, we play cards, sometimes chess, or we, you know, we talk on random things like what is happening. He is fond of cars, so we discuss on the आज ये नई कार आई है, आज ये नया एप्लीकेशन आया है, या कुछ नया कुछ, जब when we yes we do watch YouTube, but हम लोगों का फोकस उस तरफ रहता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव या जिसमें हमारा नॉलेज बढ़े, तो उस टाइप की चीजें यूजुअली वी वॉच एंड वी डिस्कस. इट इज लाइक अ हेल्दी टॉक अमंग द पीपल और द चिल्ड्रन. सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे. करेक्ट. और हम लोग अपनी आपस की बातचीत को किस तरीके से क्रिएटिव कर सकते हैं और किस तरीके से अपने बच्चे की एज के हिसाब से उसके लेवल पे जाके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. और इनफैक्ट पता है सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने घर में टीवी नहीं रखा है क्योंकि दैट्स वंडरफुल. तो एक्चुअली ये बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगा. इट इज लाइक अ स्ट्रेंज थिंग कि घर में टीवी नहीं है, बट you won't believe, even I don't have TV at my place. We don't watch TV. करेक्ट. तो वो चीजें हम, क्योंकि आजकल जैसे रिंकू मैम बता ही रही थी कि वैसे सीरियल्स कुछ आते ही नहीं है, तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है. और दूसरा हम लोग एक और चीज करते हैं जो आप बोल ही रहे हो गीतांजलि, कि हम वीकली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें थर्सडे, जैसे कल हमने बहुत ही पुरानी पिक्चर थी जवाहर भाटा धर्मेंद्र की थी, वो वॉच करी. अब नेक्स्ट मूवी हम देखेंगे थर्सडे को. बहुत पुरानी मूवी, पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी. तो कल हमने वो वॉच करी और वी हैव डिसाइडेड, क्योंकि फ्राइडे को रहता है हमेशा मूवी का, तो आज वेबिनार था, अपना वर्कशॉप था, तो मैंने बोला आज तो मूवी हो नहीं पाएगी, तो कल देख लिया. अब हमारी नेक्स्ट मूवी होगी नेक्स्ट थर्सडे. तो इट्स अ फन एंड इट्स क्रिएटिंग एक्साइटमेंट कि देयर इज अ समथिंग इन द नेक्स्ट थर्सडे. तो पूरे वीक उसका चीज का इंतजार भी रहता है और मजा भी रहता है. और ऑफ कोर्स बच्चों के साथ बच्चा हमें बनना ही पड़ता है, कल्चर्स वैल्यू हमें ही सिखाने पड़ते हैं. और दूसरा वी कैन हेल्प द पीपल टू टॉक पॉजिटिव बाय राइटिंग ऑल्सो. जैसे आई ऑलवेज से टू माई सन कि why don't you write in your copy by giving thanking to yourself, कि जैसे हम जब पॉजिटिव बोलते हैं और जब लिखते हैं तो there is a big difference कि हम उस चीज को अंदर इंकलकेट भी करते हैं. तो आई ऑलवेज मेक कि मेरा बेटा, और मैंने एक सेल्फ टॉक भी लिख कर उसके टेबल के सामने लिख दी है कि आई एम विनर, आई एम ए बेस्ट बॉय, आई एम ए ग्रेट बॉय, दैट गिव द राइट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. ताकि इस तरह से कुछ चीजें थोड़ी बहुत की सेल्फ टॉक उनका ना चिपका के टेबल के पास में लिख दिया ताकि वो रोज 3-4 बार बोले. और ऑल्सो बाय गिविंग थैंकिंग मैसेज, thanking God I have a best parents in my life, thanking God I have a younger brother, thanking God I have a best You're house. showing gratitude basically. Gratitude. That's wonderful. Yes. हाँ, इस Well, Dr. Geetika, I have a question for you. You're a nutritionist, right? So अभी अगर सिनेरियो, अगर आप घर देखते हैं, एवरीबॉडी सी घर में हाउ मच न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट. देखिए अभी जो भी चारों तरफ का जो सिनेरियो है या सिचुएशन है, या वी आर गोइंग थ्रू इन सच अ फन एंड नेगेटिविटी ओवर देयर, चारों तरफ टेंशन के अलावा कुछ नहीं है. Definitely a balanced diet play a very vital role in everybody's life. Either you talk about the toddlers or you talk about anybody, right from one day child till the 90 or 100 years old man or woman you are talking about. ये कितना हो सकता है? एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है बोलने का, खाने के साथ साथ टेबल में साथ बैठ के खाना, पूरी फैमिली, and should have a positive talk amongst them, especially talking about at the age of, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, one should have a feeling of cooperation, coordination, sharing. अगर जब तक हम कोई चीज हम बच्चों के साथ शेयर नहीं करते, बच्चे ओपन होके नहीं आते कुछ भी शेयर करने के लिए, तो हाउ अबाउट, व्हाट डू यू फील दैट ये हमारे समाज में या घर में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? व्हाट इज द रीजन? हम इतने कितने बिजी हो जा रहे हैं कि जिनके लिए हम काम करते हैं, वी आर फॉरगेटिंग अबाउट देम ओनली, एंड वी आर बिजी अबाउट देम, और बोले जा रहे हैं हम बिजी है. व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर हैविंग? क्योंकि देखिए पीछे अगर हम देखते हैं, मम्मीज को देखते हैं, दादी लोग को देखते हैं, they had a big families. इतना होने के बाद भी they have given a very good environment to their children. तो आज हमारे पास इतना सहूलियत होने के बाद भी इम्यूनिटी सिस्टम में प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, I don't know how many things that has comes up.
तो ये कैसे कोप अप कर सकते? गुड मैम, दिस इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक ये सबके घर में ये होगा, क्योंकि हम सब लेडीज जो भी बात कर रही हैं, हम सब एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, राइट? वी आर समवेयर वर्किंग लेडीज। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, वर्किंग लेडीज नहीं थी तो घर में रहती थी तो इनफ काम करती थी। बट सेकेंड चीज इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी टाइम विद किड्स एंड द क्वांटिटी टाइम विद द किड्स, ठीक है? तो अब द डिफरेंस ये है कि पहले की मदर्स क्वांटिटी देती थी पर क्वालिटी इतनी नहीं दे पाती थी। बट द सिनेरियो जिस तरह से हुआ, हम सब ग्रोन अप हो गए, ठीक है? देन सेकंड थिंग इज वी ऑल women कैन गिव क्वालिटी टाइम, बट द थिंग इज वी डोंट वांट टू गिव द क्वालिटी टाइम बिकॉज वी ourselves इज वेरी बिजी। सो थर्ड थिंग इज, ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, बट मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कोई भी चीज हो, लेट अस सपोज ये मोबाइल है, अगर ये लो बैटरी पे काम करेगा तो कैसा होगा? लो बैटरी पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो सेम हम सब मदर्स को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम बच्चों से डील कर रहे हैं, एक तो हम क्वालिटी टाइम दें, और सेकंड चीज हमारी बैटरी फुल होनी चाहिए। अब हमारी बैटरी फुल कैसे होगी ये हमें जानना है, क्योंकि हमें अपनी बैटरी फुल करनी है। हमारी बैटरी लो कैसे हो जाती है? अब लेट अस सपोज आप लोग स्कूल्स में अपने बच्चों के साथ डील करते हैं, वो आपकी बैटरी डिस्चार्ज कर देते हैं। सुबह आपको झाड़ू Right. पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ करना है, उसमें आपकी बैटरी लो हो जाती है। अब ये सारी बैटरी लो होने के बाद हम बच्चों से एक्सपेक्ट ही करते हैं, हम उनको कुछ कह नहीं पाते हैं। और जब बोलते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोन एंड द वर्ड्स, एंड द वर्ड्स एंड टोन गोज इन द taunting way so harshly कि वो it affects the kids. Right. रही सही फोर्थ बात, नेगेटिव न्यूज सब दूर है, पर नेगेटिव न्यूज बच्चों के पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे घर में तो टीवी नहीं है। और हम मेरे मोबाइल पे ऑफ कोर्स नेगेटिव न्यूज आती है किसी के थ्रू, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस देखती नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने इस कोरोना की कोई न्यूज, आई डोंट हैव हैबिट ऑफ सीइंग दिस, क्योंकि आई डोंट वांट टू बिकम अ लो बैटरी फॉर माय किड्स। कि जैसे मैंने हाँ, पर फोन पे ऑफ कोर्स हमारे नियर डियर्स की स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि हम नेगेटिव को अभी इस चीज में हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट बीइंग अ मदर, जैसे मेरा रेड बटन बटा, आई शुड प्रोग्राम माई ब्रेन विद द रेड बटन कि मुझे ये नेगेटिव न्यूज किसी को बतानी नहीं है घर में। ऑफ कोर्स स्पाउस को तो हम बता देते हैं, पर बच्चों को बताएं नहीं, ताकि वो एटमॉस्फेयर ऑफ नेगेटिव जाए नहीं। तो और अपनी बैटरी हमेशा भर के रखें। आप भर के बैटरी कैसे रखेंगे? हम खुद ही थके हुए हैं झाड़ू पोछा बर्तन के। तो व्हाट आई हैव मेड इट विथ माय सन, ही इज 10 years, ही नोज हाउ टू मेक चपाती। तो मैं जब भी चपाती बनाती हूँ तो मैं थोड़ी प्री प्लानिंग कर लेती हूँ और 3 तवे रखती हूँ और अपने बेटे को बुलाती हूँ कि भैया तुम सेकने का काम करोगे और मैं बेलने का काम करोगी। तो इस वे थ्रू दैट, एंड दैट टाइम वी चैट, उस टाइम हम चैट भी करते हैं, काम भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए सुकून होता है कि सम हेल्प इज देयर, सो माय बैटरी इज आल्सो लिटिल हायर स्टेज। तो उस तरह Even से the children are engrossed with the household activities. वेरी मच जब और मैंने नया वाइपर लिया, तो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट न्यू वाइपर विथ दिस थिंग। तो मेरा काम होता है झाड़ू करने वाला और उनका काम होता है वाइपिंग करना। और मैंने एक रोबोट भी खरीद रखा है, तो रोबोट उनके लिए एक पेट हो गया, तो दे ट्रीट एज ए पेट, कह रहे ये यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ घूम रहा है। तो विथ फन हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो जाती हैं। और गुस्से से बस वही है कि जो भी करना है हमें साथ में बच्चों के साथ करना पड़ेगा विथ बैटरी हायर, क्योंकि हम But जब why it is lacking? Dr. Jitika, I would like to come up with that. Why it is lacking? हम पेरेंट्स ये क्यों, हम भी तो काम करते थे और काम कर करके आज जितने मतलब दो बाएं हाथ का खेल है खाना बनाना, ऐसा हो गया है। तो वो बचपन से हमको सिखाया गया कि यू नीड टू बी, देखिए वो चीज माइंडसेट अलग रहा होगा कि बेटी है या बेटा है काम नहीं करेगा या काम करेगी, whatever it might be. But the question is that कि काम कराया तो काम सीखे, और काम सीखने के क्या हुआ कि आज इतने परफेक्ट है कि ट्राई मेनी थिंग्स दैट कम्स अप। हम इतने कई बार हम देखते हैं, यू मस्ट आल्सो कम अप विद दैट, इवन फॉर मिसेस छाबड़ा आल्सो माइट हैव कम अप विद दैट, कि इतना मतलब काउंसलिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ रही। हम पेरेंट्स के साथ बच्चे का ये गैप क्यों, देखिए वैसे जनरेशन गैप, और उसके बाद हम उसको गैप को बढ़ा दे रहे हैं। एक तो ओवर पैम्परिंग, अगर हम बच्चे को ये हम माहौल क्यों नहीं दे पा रहे कि जो गलत है वो सबके लिए गलत है और जो सही है वो सबके लिए सही है। क्या ये डिफाइन करना या इस दोनों चीज को समझाना या एक सेंटेंस में क्या इतना ही टफ है? क्या होता है कि ओवर पैम्परिंग करते करते, कवर अप करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि दे आर आउट ऑफ कंट्रोल,
और फिर हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर पा रहे बीइंग अ पेरेंट कि Right. अगर हम गलतियां ढूंढ रहे हैं, वी नीड टू एप्रिशिएट द चाइल्ड, कि अगर कुछ अच्छा कर रहा है यू हैव टू प्रेज द चाइल्ड। ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर घर में ही हम ये माहौल दे देते हैं, आई डोंट थिंक कि वी डोंट हैव टू रश फॉर द साइकियाट्रिस्ट, वी डोंट हैव टू रश फॉर द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल। ये घर में ही है, हम बड़े ही कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर? व्हाट इज द रीजन? ये क्यों नहीं हो पा रहा है? I think लाइक लास्ट ईयर तक का सिनेरियो कुछ डिफरेंट था, बट अभी चूंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनलाइन एंड हम लोगों ने काफी सारा ऑनलाइन काफी चीजें सर्च करी हैं, तो लास्ट ईयर से ग्रेजुअली काफी पेरेंट्स हैव इम्प्रूव्ड दिस थिंग। स्टिल सी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं भी जो इन चीजों को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, दे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, बिकॉज ऑफ द जॉब। तो but still even being a mature person, काफी पेरेंट्स इन चीजों को ओवरकम भी किया है, एंड नाउ आई थिंक बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना है, क्योंकि आजकल इतनी सारी वेबिनार्स हो रही हैं या न्यूज़पेपर्स में इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा आई ओपनर है, और पेरेंट्स उन चीजों को देख भी रहे हैं। सी अगेन आई विल टेल यू, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो अगर पहले 10 में से 8 पेरेंट्स इन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, बट आज वो परसेंटेज बढ़ के 7 to 8 हो गया है, जो हार्डली 1 या 2% ऐसे बचे हैं जो इन चीजों को प्रॉब्लम मान रहे हैं, या एक पैंडेमिक का एक उनके दिमाग में एक स्ट्रेस है कि ये चीजें हमेशा रहेंगी या जो भी है, और उस वजह से उनके अंदर जो स्ट्रेस है वो बच्चों के ऊपर शो हो रहा है या बच्चों के सामने निकल रहा है। तो आई थिंक वैसे भी इस बार तो सेकंड बार लॉकडाउन हुआ है, वो बोलते हैं ना कि पहली गलती में भी आप गलती कर रहे हो, सेकंड गलती में भी अगर लर्निंग और चेंज नहीं है, then what is the difference what you are creating? यस, इंसान होने का वही तो एक प्रूफ है कि हम लोग गलतियों से सीख रहे हैं या हम हमारे पुराने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। तो मिसेस छाबड़ा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, लाइक अभी हम लोग हर तरफ, लाइक वेल मेरे यहाँ भी टीवी नहीं है, आई डोंट वॉच टीवी, बट हाँ मोबाइल ऑब्वियसली यस, हम लोग मोबाइल देखते हैं, बहुत सारी सैड न्यूज आती हैं, बैड न्यूज आती हैं, और न्यूज़पेपर भी या आस पड़ोस में भी हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि आज यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ ये हो गया। तो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी हमको इस सारी सिचुएशन से हमें बहुत अच्छे से फाइट करना है, बी पॉजिटिव। तो ऐसे में आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए कि अगर हम लोग सब तरफ से नेगेटिव चीजों से घिरे हुए हैं, उस बीच में हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख पाए? क्योंकि सी मेडिटेशन वी आर डूइंग, बट स्टिल कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स है। अगर हम अवॉइड कर रहे हैं बैड न्यूज को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई हमारा नियर डियर वंस कोई अगर एक्सपायर हुआ है या कुछ भी XYZ बैड चीज कुछ हुई है, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती है, एंड समटाइम्स इट रिफ्लेक्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप गीतांजलि, ये बहुत ही मतलब आज बहुत बड़ा इश्यू है ये, कि कोई आसान चीज नहीं चल रही है, बहुत बुरी सिचुएशन है ना। हम पिछले लॉकडाउन को बोले तो वो एक एंजॉयबल टाइम था, तब सच में फैमिली ने क्वालिटी टाइम किया है, सबने घर के कामों में एंजॉय किया है, हेल्प करी, सब कुछ हुआ था। लेकिन आज का जो समय है, उस समय हम अलग मोड में थे, लेकिन आज जो है हम सब उस कोविड के जो मेंटल हमारे अंदर वरीज एंजाइटी डाल रहा है, हम कोई भी उससे बचे हुए नहीं। एक मेरे लिए हमेशा एक मेरी काउंसलिंग में एक टर्म मैं यूज करती हूँ, एक्सेप्टेंसी। ओके, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो सिचुएशन है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये है, बुरा समय है, वरीज का है। आपको अगर इतनी सारी बीमारियों की न्यूज आती है, आपको पता लगता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, लोगों के पास कितने लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है उन चीजों को करने के लिए, या फिर चलो ये बीमारी वाला पार्ट जिनका हटा दो, जो स्वस्थ है लेकिन उनके पास में काम नहीं है, आज लॉकडाउन हो गया है, कितनी बड़ी जनता हमारी रोज कमाती है और रोज खाती है, राइट।
तो कितनी ये सारी चीजें, मतलब हम इस तरह की इमोशनल चीजें भी सुनते हैं कि उसके यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके यहाँ खाने को नहीं है। हम बीमारियों को लेकर सुन रहे हैं, हमारे कितनी सारी हम नेगेटिव न्यूज हमारी डेथ की सुन रहे हैं। और अभी तक तो चलो कोविड से बच्चे सुन रहे थे, अब ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, आज नया टर्म शुरू हो गया। Yes. तो अब अगर इस सिचुएशन में चल रहे हैं तो बीइंग अ ह्यूमन आप कैसे इन चीजों को अवॉइड कर सकते? तो जो अगर नेगेटिव माहौल है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि हम नेगेटिव हैं, लेकिन नेगेटिविटी का मतलब, या हम बोलें कि बी पॉजिटिव वर्ड, जैसे आपने बोला कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए रखें। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पॉजिटिविटी आज का जो सिनेरियो है वो हमें एक मैच्योरिटी का समय बताता है, हमको सोचने का समय, कि हम अपनी थिंकिंग में ये चीज मैच्योरिटी लेकर आए कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, लेकिन साथ में हमें अपनी, जैसे बातें अपन करते हैं कि अपने को लग रहा है ये सब होगा, फिर कल सब ठीक होगा, ये अप्रोच हमको बना के रखने पड़ेगी। We should have hope. हम फिर स्कूल जाएंगे, हम फिर काम पर जाएंगे, हमें आज में जीना है। जो ये आपने कहा, आपने घर में टीवी नहीं रखा है, आप नेगेटिव न्यूज से हट जाते हो, है ना। डेफिनेटली ये सब चीजें जो रहती हैं ये बहुत मतलब एक अटेंशन रेजिड्यू रहता है हमारे दिमाग में। हमने न्यूज सुनी है, आज वो न्यूज हट गई, हम कह रहे हैं हम पॉजिटिव हैं, पर हम पॉजिटिव नहीं होते, वो हमारे बैक ऑफ माइंड, हमें सबकॉन्शियस पे अटैक करती है। तो हमें यहाँ पर सीखना है कि सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना है कि सिचुएशन बहुत बुरी है, और जो सिंपल चीजें हमको बोल रहे हैं, रोज हम गाना सुनते हैं अपने आप को कि आपको ये कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, स्टे होम वाला जो है, आपका जो है मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, डिस्टेंस मेंटेनिंग है, ये वगैरह वगैरह, जो सारी चीजों के प्रिकॉशंस को आपको पूरा रखना है। और उसके बाद में फिर आज पर जीना, प्रेजेंट जो आपकी लाइफ है, आपको आज पर देखना है कि हाँ आज मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, कल का मैं कल देख लूँ। तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेजेंट में लेकर रहना पड़ेगा, हमें अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारे लिए आज हमको इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ है ना। हम खुशी करें, हम एंजॉय करके करें नहीं, पर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें। हमारी दूसरी चीज होती है हमारी मेंटल हेल्थ, हम हमारी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। जो चीजें उसी से रिलेटेड होती है कि आपकी फिजिकल हेल्थ कहाँ से होगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी बात चली थी फूड कि सबसे पहले हम अच्छा खाना लें, है ना, बैलेंस्ड मील हमारे पास में होना चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए स्लीप, आपको स्वस्थ रहने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए आपको नींद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पर हमने अपना नींद पैटर्न डिस्टर्ब कर लिया है। हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों लॉकडाउन और आज के सिनेरियो या आज की न्यूज, हम क्यों ये सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, जो आपको मतलब न्यूज देती ही नहीं है, वो कुछ और कहानियां बना वो दे रही है, तो हम वही चीज हो रही है। सकते हैं। हाँ। तो हम इन चीजों को अपने ये सब चीजें हम अपने अंदर से हटाएं, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें। हम हमारे बच्चों को हमारे घर के कामों में उनको इन्वॉल्व कर लें, जिससे हमारा काम भी इजी हो जाता है और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। नहीं तो वो उसको कोई काम नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि मैं कुकिंग में परफेक्ट हूँ और मुझे अपने बच्चे को साथ में कुकिंग करवानी है, तो आधा घंटा लगेगा लेकिन मैं 15 मिनट में वो काम कर सकती हूँ। तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं खुद कर लूं, और फिर मैं रात को रोऊंगी मेरे ऊपर मैं ओवरबर्डन हूँ। हमारे बच्चे हाँ कर लेगी, तो हम क्यों हमको समय बचाना है। और वो समय बचा के हम क्या करेंगे, हम उठाकर फोन पे लग जाएंगे इधर उधर बातें करने पे, या खबरों को देखने पे, या टीवी के बेकार से सीरियल्स देखने में। तो हम उन बच्चों को जो चीजों का हम रोज रोते रहते हैं और आज भी रोते हैं, हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, फूड हैबिट्स पे ध्यान दें, सोने की आदतों पे ध्यान दें। हम गार्डनिंग कर सकते हैं, हम
हमारी जो कितनी सारी चीजें हैं, बेसिकली हाँ रीडिंग की हैबिट बच्चों में बिल्कुल नहीं है। अभी देखिएगा आप आने वाले आप टीचर्स लोग, बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, आपको ये दिक्कत देने वाले हैं बच्चे। तो हम जो एग्जैक्टली ये सारी यस चीजें हैं राइट इन पे खुद भी काम करें ना। हम खुद क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर सकते, हम खुद क्यों नहीं थोड़ा लिखना शुरू करें, हम बच्चों के साथ में काम करें, हम गार्डनिंग करें। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स जिनके साथ घर में रह रहे हैं, और वो ग्रैंड पेरेंट्स क्या को लुक आफ्टर करने का काम बच्चों को दे दो। ये सारे हम छोटी पे आप मेडिसिन देखोगे दादा दादी की, आप उनके साथ में बाहर टहलोगे, आप उनके, हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं जहाँ पर जो फैमिली जो सिंगल फैमिलीज हैं वहां पर आपके पास में कितना अच्छी चीज है। आप वीडियो कॉल करिए ना, कभी दादा दादी से, कभी अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों के फ्रेंड्स से बातें करिए, अपने बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स से आप लोग बातें करिए। आप रोज रख लीजिए हमें किसी से एक वीडियो कॉल करना है, और उसमें हमने संकल्प लिया कि हम ये नेगेटिव न्यूज के बारे में, कोविड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज का समय ऐसा है कि जहाँ दैट्स हम रियली अपने अ आप वेरी गुड को पॉइंट और अपने बच्चों को स्पिरिचुअली हमें डेवलप करना है, हमें बच्चों को प्रेयर करना सिखाना है। आपको अभी जैसे ग्रेटिट्यूड की बात करिए, स्टार्ट यहाँ से होता है कि आप थैंक्स करो ईश्वर को, आप अपने लिए प्रेयर करो, दूसरों के लिए प्रेयर करो, अपनी फैमिली के लिए करो। आज के समय में हमें पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्रेयर करनी है, अपने बच्चों को सिखानी है। हम बच्चे के अंदर जो सोशल वर्क यही नहीं होता है कि हम कहीं जाते हैं किसी हैंडीकैप को मदद करके आते हैं। हम ये सोशल वर्क का यहाँ कंसेप्ट अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप ये गलत खाने पर, ये गलत इन चीजों से आप सेव करके आप अपनी मनी को सेव करो। आप कुछ नहीं, आपके घर में जो आने वाली मेड की बच्चे की फीस भर देना बेटा। कल वो बच्चा जो ये डोनेशन का ये कंसेप्ट जब सीखता है, उसके अंदर कितनी आप ये नहीं भागो मत, कोविड से अपने बच्चों को बचाओ मत, आज की जो सिनेरियो उनको बताओ, पर ये न्यूज नहीं बतानी इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ये न्यूज नहीं बतानी। आज ये पेंडेमिक है, दुनिया में क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, लोग कैसी कैसी स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हम उन बच्चों को बताएं। बच्चे को हमको प्रिपेयर करके रखना है, हम उसको बचा के रखेंगे। हमारे ऊपर है कि कल बच्चा जो है ऐसे हम सेफ जोन में उसको रखेंगे, कल उसके साथ सिचुएशन जो आएगी वो फाइट करना नहीं सीखेगा। हम चाहते हैं हमारा बच्चा फाइट करे, लड़ना सीखे, भागना नहीं, डरना नहीं। फियर एंड फाइट ये 2 वर्ड्स है। आपको बच्चे को डराना नहीं है इस सिचुएशन से, आपको उस बच्चे को फाइट करना सिखाना है कि हम प्रिपेयर रहे, कि हमने कभी नहीं सोचा ना, हमने कितनी प्लानिंग करी थी, बहुत सारी चीजें नेगेटिव, हम बीमारी के लिए तैयार रहते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। हम बहुत सारी चीजों के लिए हमने सोचे हुए थे, हमने ये चीजें फेस करी हुई थी, पर हमने कभी सोचा था कि एक दिन अचानक से डिक्लेयर हो जाएगा कि तुम्हें अपने घर में रहना है। ऐसी पेंडेमिक जैसी चीजें आएंगी, हम तो भूल गए थे कि हाँ 1920 में हमने कभी पढ़ा था, या बीच बीच में कुछ और भी बीमारियां आई हैं, पर इतनी भयानक चीज हमने पहली बार सुनी और देखी है। तो हमारे बच्चे का ये चीजें कि जो एक्सपीरियंस आज हम आज कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने वो कर लिया। तो उनको तैयार रहना है कि आज की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो तैयार रहे, अपने आप को कैसे कोप अप करना है, कैसे उन चीजों से फाइट करना है, और कल वापस जाकर आपको पॉजिटिव होकर स्ट्रेंथ के साथ में अपनी फिर से लाइफ में जो भी सिनेरियो होगा उस सिनेरियो में कैसे जीना है, बजाय कि एस्केपिंग, बजाय कि उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रखना। आप बताइए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि बहुत हमें अच्छा बताया। भागना नहीं है, फाइट करना है, और हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज हो रही है तो वी हैव टू एक्सेप्ट। और जब हम एक्सेप्टेंस सीखेंगे हर चीज को, and it's not only about the situation, it's about the other family members behavior और attitude। अगर हम एक्सेप्टेंस सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अंदर से खुद ही ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है या इस टाइप का बिहेव हो रहा है तो हम उस चीज को किस तरीके से अपने फेवर में कर सकते हैं। यस, तो दैट्स रियली वंडरफुल थिंग। बिल्कुल, ये जो समय है ये हमें स्पिरिचुअली ग्रोन करने के लिए। यस, इसको अगर समझेंगे, जो आप ही और मैडम रिंकू मैम ने भी जैसे कहा कि हमारे दादा दादी की कहानियां, या हम ये पढ़ते थे, वो जो हम लोग कहानियां पढ़ते थे, हम महाभारत में जो सुनते हैं या रामायण में जो सुनते हैं या दूसरी हमारी जो फोक
जो स्टोरीज थी हमने या दादा दादी की कहानियां इन सब में सुना है, आज उनको हितोपदेश सोचने है, का समय, पंचतंत्र है, यस उसका मीनिंग समझने का समय। तो हम राइट। बच्चों को, क्योंकि आप देखिए छोटे से बच्चों के लिए भी, 4 साल के बच्चों के लिए भी महाभारत रामायण उनके हिसाब से आ रही है, से लेके बड़े तक के लिए। तो हम बच्चों को उसकी लैंग्वेज में, उसकी मेंटल मैच्योरिटी के हिसाब से वो बच्चे को प्रैक्टिकल चीजें समझाते जाएं, तो शायद हमारे लिए ये, मतलब जो लॉस है, जो बीमार हो रहे हैं, वो हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए हम पे करें, लेकिन चीजें हम आज भी सीख सकते हैं और हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। डॉक्टर गीतिका जी, मुझे एक क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी जी, कि एक सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं लगता मैम आजकल कि उसके लिए हमें एक अपनी लाइफ में, एक अपने डेली रूटीन के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाए। सबसे बिल्कुल पहले कितने बजे उठना है, क्या खाना है, बिल्कुल क्या पढ़ना है। और जब इंसान अपने पूरे डेली रूटीन को एक टाइम टेबल में बांध लेगा तो वो ना वो फ्री रहेगा, ना ही उसका दिमाग इधर उधर जाएगा। एग्जैक्टली मैडम, ये आप लोग जो स्कूल कैरिकुलम को देखो ना, कितना खूबसूरत कैरिकुलम होता है। आपकी रोज प्रेयर होती है, आपकी रोज एक्सरसाइज होती है, आपका पढ़ाई होती है, आपके एक्स्ट्रा, आपको अभी डांस करना चाहते हो, आप आर्ट करना चाहते हो, हम लोग जैसे आप लोगों की डिबेट्स रखते हो, है ना, हर तरह से इंटेलेक्चुअल जो है रिक्रिएशन, हम कितनी ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की और जो स्कूल हम बच्चे स्कूल करता में है, हम आर्ट क्यों नहीं मेंटेन कर सकते, हम क्यों नहीं रख सकते हैं? आर्ट और ये सारी चीजें जो एक्टिविटी हम लोग स्कूल में किया करते थे, आज हम यूट्यूब पे उठा करके देखें तो ढेर वीडियो मिल जाएंगी। ढेरों मिल तो जाएंगे। हम 1 मिनट गेम है या हम कुछ और एक्टिविटी करके भी हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम कुछ पढ़ करके ही अपना टाइम बिताएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम बहुत अगर सारी चीजें किसी के अच्छी, साथ में भी आप हम अपना पॉजिटिव ढूंढने जाएंगे, बिल्कुल मिलेगा मैम। आई एम 100% एग्री विथ यू कि आपको वो टाइम टेबल जो स्कूल के टाइम पे बनाया गया होता है, ये हम सबको अपनी लाइफ में रखना है। जी। तो ये एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी डॉक्टर गीतिका से एक क्वेश्चन है। डॉक्टर गीता, एक्चुअली वो क्वेश्चन बाईपास हो गया। आई वाज टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट। करेक्ट। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि बैलेंस डाइट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या क्योंकि अभी सारा लॉकडाउन है, शॉप्स भी बंद है, तो हम घर के अंदर ही ऐसी क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइक ऑब्वियसली बीइंग द लेडी ऑफ द हाउस, हमको सबका भी ध्यान रखना है खुद के अलावा, एंड खुद का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि हमें सबको संभालना है। तो प्लीज अगर आप कुछ टिप्स दे सको तो दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू। तो एक्चुअली जो ये मैं जहां से स्टार्ट की थी वही बोलूंगी कि लीड फ्रॉम फ्रंट होता है कि मुझे ध्यान रखना है कि मुझे हेल्दी खाना है, तो मुझे हेल्दी की शॉपिंग करनी है। तो स्टार्ट फ्रॉम द शॉपिंग लिस्ट ओनली, क्योंकि अभी हम लोग तो ऑनलाइन ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर पीपल आर मोर टुवर्ड्स द ऑनलाइन। तो फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ऑफकोर्स बच्चे स्पाउस सभी जाके बैठते हैं। तो शॉपिंग में हमारा ये रहता है कि मैंने आज तक चिप्स मेरे घर में नहीं आई है ऑलमोस्ट, मतलब मैरिज को 10 साल हो गए हैं और बच्चा मेरा 10 साल का है। तो मैं मेरे घर पे चिप्स मिक्सचर ये नहीं रहती, बट इंदौर की सेव जरूर रहती है, जो मेरे जंक फूड में आप कह सकते हो। इंदौरी सेव के दैट इज वर्ल्ड फेमस, इंदौरी सेव इज वर्ल्ड फेमस। बैंगलोर हम लोग खाना भी नहीं सोच सकते सेव के बिना। बैंगलोर में हूँ पर इंदौर को छोड़ नहीं सकती। तो वो एक सेव ही है जो मेरे जंक फूड है, और पार्ले जी के बिस्किट रहते हैं दूसरे बिस्किट नहीं रहते हैं, वो भी सुबह दूध के साथ मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। और बच्चे प्रोग्राम्ड हैं इस चीज के लिए। और ऑफ कोर्स फ्रूट सैलेड रहता है, फ्रूट सैलेड राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग शुरू से ही बच्चों को जिस तरीके के लिए सेट एक लाइक जैसे हम मोबाइल में अपना कोई भी चीज फीड करते कि मुझे ये करना है, ये मेरा अलार्म है और ये काम के लिए ये अलार्म बजेगा, तो उसी टाइप से अगर हम स्टार्टिंग से ही, और अगर स्टार्टिंग नहीं भी कर पाए तो हम एक सर्टेन एज में आके अगर हम उस चीज को टाइम टेबल वाइज, जो जयंती मैम ने बताया और जैसे आप भी बता रहे हो, तो दैट आई गेस दैट इज द वंडरफुल थिंग कि हम हर चीज का एक फिक्स टाइम कर लें या बच्चों को उसी तरीके से प्रोग्राम करें कि दिस इज नॉट गुड, यू शुडंट डू दैट, ये चीज आपके लिए अच्छी है या ये चीज सोसाइटी के लिए अच्छी है, हमारी फैमिली के लिए अच्छी, दैट यू शुड डू। गीतांजलि, आई जस्ट थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहूंगी आपने जो बताया
व्हेन आई वाज स्मॉल, हम एक एवरी संडे ना एक साईं बाबा का वो होता था, उसमें बाल विकास करके होता था एवरी संडे, एंड उसमें ना Okay. ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस होते थे। हमको रात को सोने से पहले लिखने होते थे कि हमने क्या किया, किसी को बुली किया कि नहीं किया, सुबह उठ के That is माँ like बाबा के diary पैर छुए writing. कि नहीं Diary छुए, writing. ना Yes. पढ़ाई की कि नहीं की, झूठ बोला कि नहीं बोला, वी हैड अ ट्रैक ऑफ इट। तो 30 डेज का जो होता था ना, एवरी डे वी हैव टू फिल अप। और उसके बाद उनको जो हम जब जाते थे संडे बाल विकास, तो हमारी जो हेड होती थी उनको हम बताते थे, आई यूज टू जस्ट, कभी कैसा हो जाता था किसी दिन भूल गए या नहीं लिखा, आलस कर जाते थे, आखिर बच्चे ही थे, तो तुरंत वो पकड़ लेती थी कि एक साथ के 3 कॉलम भरा गया, रोज नहीं भरा आपने, एक साथ Right. भरा गया। दैट But इंटेलिजेंस या तो वो वो चीज एक उसके अच्छी, है ना, ये हाँ एक वो नया चीज है जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं कि एवरीडे यू कैन राइट कि हमने एक झूठ बोला कि नहीं बोला, भाई बहन के साथ बुली किया नहीं किया, मम्मा पापा के साथ एग्जैक्टली झगड़ा वो किया एक नहीं तरीके से किया। हाँ इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज हो जाती है कि हम या अपने आप या को या अंदर कितना झांक रहे हैं और उस तरीके से बिल्कुल हम अपने आप बिल्कुल, को कितना इम्प्रूव कर पाएंगे। यस बच्चों के यस तो साथ यस, साथ बेसिकली हम लोग पेरेंट्स के लिए भी ये इंट्रोस्पेक्शन हम यस सबके लिए जरूरी है, हर एज में राइट के लिए। और Correct. ऐसे ही राइट टीचर के लिए भी है कि उसको राइटिंग स्किल है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टीचर के लिए भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बच्चा लिखना भी सीखेगा, क्योंकि बच्चे ओके आजकल के क्या होते हैं, सोच तो लेते हैं लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता लिखना है। नहीं है। तो वही यस चीजें वो अगर तो लिखना सोचेंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों उनकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी। यस गीतिका आप बैलेंस डाइट का एक थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप हमें बताएं। यही चीज बताई थी कि फर्स्ट जंक फूड खाने में हटाना है, और वही चीज हमें हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है कि जंक फूड हमें राइट लेना ही नहीं है, तो फिर जो बोलते हैं ना, न रहेगी बांस तो क्या बजेगी बांसुरी, तो एग्जैक्टली जो चीज सामने ही नहीं है हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। सोचेंगे वो या प्रोग्राम ही नहीं होगी। तो मेरे बच्चों के प्रोग्राम में है कि नहीं, शॉपिंग में जंक फूड लेना ही नहीं है, और पास्ता ये सब चीजें नहीं है। और जैसे पिज्जा भी बनता है तो पिज्जा भी आटे का ही बनता है, दैट इज वन थिंग। और केक बनता है तो वो भी आटा और घी का बनता है, जो मैं ध्यान रखती हूँ। और आपको सैलेड पे जोर देती हूँ। और मेरा छोटा बच्चा 4 साल का है, तो जब सैलेड बनता है तो वो थोड़ा वेजिटेबल्स याद भी कर लेता है, तो इस बहाने तो सैलेड्स पे ध्यान दिया जाता है। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा में मोस्टली उन्होंने हमेशा सब्जी रोटी ही खाई है, मतलब राइस नहीं खाया, बीइंग इन द उड़ीसा आल्सो। तो रोटी सब्जी का बहुत ज्यादा है। तो मेरे दोनों बच्चे रोटी सब्जी ही पसंद करते हैं, तो उनका मोस्टली आफ्टरनून भी रोटी सब्जी होता है और रात को भी रोटी सब्जी होता है, और इवनिंग अगर उनको भूख लगी अचानक तो उस टाइम भी रोटी सब्जी होता है। तो थोक में सुबह रोटी बन जाती है, क्योंकि उनको प्रोग्राम ही ये किया गया है कि भाई भूख लगती है तो रोटी सब्जी खाई जाती है। तो दैट इज द वन थिंग विच आई टेक केयर ऑफ दैट। और ऑफ कोर्स प्लेट्स में जब भी बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मैम ने भी बोला, तो विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन शुड बी देयर। सो ऑफ कोर्स आई मेक श्योर कि वो प्लेट को 4 भागों में डिवाइड किया जाए। मतलब मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली जा रही हूँ, बट द थिंग इज इट इज गुड टू डिवाइड योर प्लेट अकॉर्डिंग टू कि आपका एक हिस्सा आपका प्रोटीन का हो, एक कार्बोहाइड्रेट का हो, और एक विटामिन और मिनरल्स का हो। इस हिसाब से 50% विटामिन का होना चाहिए, वन साइड कार्बोहाइड्रेट एंड देन प्रोटीन। तो इस तरह से आप जब प्लेट्स को डिवाइड करते हो और वही प्लेट आप खाते हो, और अभी तो सीजनल फ्रूट्स का टाइम है, तो डेफिनेटली सारे टाइम मैंगो की बात की जाती है, तो मैंगो के अराउंड ही फ्रूट्स में ज्यादा हम मैंगो खा रहे हैं, ये सीजनल फ्रूट्स के हिसाब से, तो यही खाते हैं और इसी की बात करते हैं। और सेकंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं कलर्स की बहुत बात करती हूँ, क्योंकि मैं आई एम लाइक आई मेक लॉट्स ऑफ वीडियोज ऑन द सोशल मीडिया फॉर द educating and people also. So I make sure कि my talk more towards the food and nutrition, मेरी talk food nutrition पे tips पे बहुत ज्यादा होती है, self help पे होती है। और second thing, 5 colors like red, white and green, white, yellow and brinjal. So these 5 colors I always include in our food एंड ऑलवेज टेल पीपल कि ये आपके 5 कलर आपके खाने में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब प्लांट पिगमेंट, और ये प्लांट पिगमेंट हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को मारते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से पैदा होते हैं? हमारे रेडिएशन से पैदा होते हैं, पॉल्यूशन से पैदा होते हैं, खाने में जो मिलावट होती है, इन सब से पैदा होते हैं। तो
सैलेड ऑफकोर्स, अब सैलेड का मेरा सिंपल फंडा है, अगर मैं 2 ककड़ी या 4 ककड़ी, जितनी भी ककड़ी डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी नमक और नींबू लगा के या अपना जीरावन थोड़ा सा डाल के, तो तो बच्चे खा लेते हैं, आते जाते खा लेते हैं। तो मोस्टली मेरा यही फंडा रहता है, मैं सुबह ही काट के डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी तो बच्चों को आते जाते वो खा लेते हैं। so that makes my change the habit कि मैं ज्यादा उनको डाइनिंग टेबल पे मिक्सचर ये सब चीजें नहीं रखूं, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है तो उनके पास जो सामने होते हैं वो खाते हैं। तो सामने Right. उनके पास ककड़ी, टमाटर, पापड़, इस मतलब चलो पापड़ भी रोस्टेड, मतलब आई प्रिफर रोस्टेड रादर देन टू मच ऑयली। और पूरी की बात होती है तो मोस्टली मैं 10 डेज में पूरी बनाती हूँ, तो मेरा ऑयल कंजप्शन पे भी मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा ऑयल कंजप्शन मंथली कितना जा रहा है। तो आई मेक श्योर कि ये सब चीजें मैं पैरामीटर अपने घर में ध्यान रखूं ताकि बच्चे भी हेल्दी रहें और बच्चे भी न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, क्योंकि माहौल एनवायरमेंट तो माँ ही क्रिएट करती है ना। हम एग्जैक्टली जो बच्चा देख रहा है वही चीज सीखेगा और उसी तरीके से खुद को डेवलप करेगा वो। राइट जो अपनी हैबिट्स रहती हैं बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। राइट एंड दे इमिटेट ना, अकॉर्डिंगली दे इमिटेट, उनको बाहर से इमिटेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। Anyhow, Dr. Geetika and Mrs. Chabra, it was really a lovely session and बहुत अच्छा आपने बताया। ओनली थोड़ा सा और जानना चाहूंगी मैं, लिटिल बिट, फॉर इफ यू हैव अ टाइम, तो 2-3 मिनट का और मैं जानना चाहूंगी। कैन यू गिव द टिप्स और कैन यू गाइड that what best can be done at this pandemic situation, especially we are talking about our children and they are confined into 4 walls। देखिए गैजेट्स है, सब कुछ है, एवरी नेगेटिविटी, तो बाहर भी नेगेटिविटी, अंदर भी नेगेटिविटी, हाउ टू कम आउट विद दैट, हाउ टू, इसमें पेरेंट्स का कितना पॉजिटिव रोल है टुवर्ड्स द चिल्ड्रन? कैन यू प्लीज गाइड अस विद 1 or 2 minutes? देखिए जो समय निकल गया है ना, हमने अच्छा किया, गलत किया, जो भी किया, अभी भी हमें दिख रहा है कि स्कूल अभी शुरू होने वाले नहीं है, तो अभी भी हम सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो पहली चीज बच्चों के अंदर वापस से कि वो दिन आएगा फिर से, वो वाली चीजें स्कूल को लेके पॉजिटिव चीज सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दो। अभी स्कूल शुरू होने वाले हैं ना, फिर ऐसा स्कूल शुरू होंगे तो ऐसा है ना, हम लोग उल्टा बोलते हैं, अच्छा अभी कर लो, स्कूल शुरू होंगे तब पता होगा। नो, नेवर राइट, वेरी ट्रू, सब कुछ वापस से अच्छा होगा, है ना। स्कूल में सब कितना अच्छा था, हम वो चीज करें, हम वापस से एक सिंपल चीज जो है, अपना जो बच्चे का स्कूल कैरिकुलम कैसे फिक्स होता है कि आपकी फर्स्ट डे ही आप डिसाइड करते हो, बता देते हो कि इस दिन आपकी ट्राइमेस्टर एग्जाम होगी, इस दिन 6 मंथली होगी, इस दिन ये असाइनमेंट है, इस दिन हमारे एनुअल फंक्शंस होंगे। तो ऐसे ही हम भी अपने बच्चों के साथ में बैठ के एक पूरा एक एनुअल कि हमारे साल के हमारे टारगेट क्या रहेंगे, कुछ एक मंथली टारगेट, एक पर डे हमारा टारगेट, कि हम वो एक पूरा टाइम शेड्यूल बच्चों के साथ में बनाए। कि जैसे अभी मैंने कहा कि बच्चों का वेट बहुत बढ़ गया है ना, तो हम उस वेट के लिए हमें काम करना है। हमने जो है अपने, क्योंकि जो चीज मैं कह रही हूँ, फिजिकल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सेकंड आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थर्ड फिर आपको अपनी सोशल लाइफ पर भी ध्यान देना है ना। तो ये सारी चीजों को हम बचा हुआ जो समय है अभी भी अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हमको, सबको बहुत पेरेंट्स बहुत नॉलेज है सबके पास, सोशल मीडिया से सबको बहुत मिला है कि हमें हेल्दी रहने के लिए, फिजिकली मेंटली हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना, सब हमें सब कुछ मालूम है। तो आज से ही क्यों ना हम वो एक संकल्प लें कि जो समय है हम आज से फिर से शुरू करेंगे, हम एक हेल्दी डाइट रखेंगे, हम रोज एक्सरसाइज करेंगे, हम समय पे हम सोएंगे, हम समय पर उठेंगे। हमारी लाइफ में जैसे अभी आपने कहा कि वो 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका एक सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका होता है ये, कि आप हमेशा उसको करते रहो। आपको रात को सोने के पहले सोचना है कि आपने आज कौन सा ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, कौन सा ऐसा काम किया जो टाइम वेस्ट किया। हम ये सोचें कि हमारी कौन सी चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस दे रही हैं, हमें तकलीफ दे रही हैं। जैसे अभी आप मैडम डॉक्टर गीतिका बार बार बता रही थी कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर काम करते हैं, तो ऐसे अगर हमारे बच्चे बड़े हैं तो हम उनके साथ उनकी उम्र के फ्रेंड बन के बात करें, अकॉर्डिंग टू द एज, है ना। हम हमारे बड़ों को, हमारे जो मतलब हमारी खुशकिस्मती है जिनके साथ में उनके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, yes,
है ना। तो वो ग्रैंड पेरेंट्स जब देखते, अभी तक क्या देख रहे थे, बच्चे अपने बिजी हैं, हम अपने बिजी हैं, तो उन्होंने भी अपना जो सोर्स बना लिया बिजी रखने का, अलग बना लिया सोच। हाँ, उन्होंने भी हाँ, टीवी अलूप हो बना गए, दिया। अलूप हो गए। तो हम या अगर उनके साथ में भी, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में भी, हमारे घर में जो बड़े हैं उनके साथ में हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू करें, तो ये या सारी एक फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। और हमारे पास में एक जैसे फैमिली बॉन्डिंग भी बन जाती है बिल्कुल ना, बन एक फैमिली बॉन्डिंग। और आगे चल के अब जो हमारा अपकमिंग जनरेशन है वो भी वही सीखता है, उसके लिए अलग से मैं हमेशा और अपने बच्चों छोटी को बोलती छोटी हूँ, सी बाहर से कुछ नहीं कोशिशें, जैसे सीखते। आपने कहा, आपने डिसाइड किया कि आप वीक में एक मूवी देखते हैं, है या ना। एक छोटे छोटे ऐसे हमको टास्क अपने बना के रखने हैं फुल डे में, बिल्कुल। कि हम या पूरी फैमिली जो है, हम हमारा क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड कर सकते या हैं। वेरी और उसमें हमको दिख रहा है कि माँ फ्री नहीं हो रही है, तो यहाँ फादर भी, पेरेंटिंग में मदर के लिए नहीं है, ये फादर के लिए भी है ना, कि वो फादर जाके मदर की हेल्प करता है, वो फादर जाके बच्चों को बोलता है कि चलो हम मम्मी की हेल्प करें। क्योंकि माँ आज बैठ के पढ़ रही है कि सब लोग बैठे हैं, ये लोग तो टीवी देख रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और वो बेचारी लगी हुई है। हाँ, ये सिनेरियो है मैम, ये तो ये है, हो रहा है, ये घर की सर्कल में छोटी है छोटी ये, प्रॉब्लम और है। इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। वो अंदर तो कुड़ती है, दैट इज दुखी होती है, फिर हंस खेल के माफ करके दूसरे दिन फिर फ्रेश हो जाती है। या तो यहाँ पर जो रहते हैं घर पे, जो एल्डर्स हैं और जो हस्बैंड है, वो ये चीज को समझे, वो अपने जब वाइफ की हेल्प करने आएगा तो वो बच्चे देखेंगे और कल वो सीखेंगे, क्योंकि लड़का लड़की की बात डेफिनेटली खत्म हो डेफिनेटली गई है। they सबको imitate लड़के को elders भी only, कहना they है, लड़की imitate को their भी parents कहना है। only. Yeah, तो very बच्चा very ये true, देखेगा very true. फादर मेरा हेल्प कर रहा है, फादर बैठे बैठे ऑर्डर नहीं मार रहा है ना, खुद जाके ले रहा है, yes. तो वो सब Yeah, it's a सीखते very हैं। strong point. It's a very बिल्कुल strong point. कि when we ये order somebody, the child also learn to order. Either बिल्कुल। he or she हाँ, never तो see वो the माँ ordering को the ऐसे mother खुद or the का sister or ग्रांटेड the लेने father. लगती Yeah, है। very true. हाँ, कि माँ तो कर लेगी, कर लेती है, कर तो लेगी, हम हाँ, थोड़ा सा करें। एक माइंडसेट और हो जाता मदर्स है। के लिए भी स्पेशली, कि अब जैसे एक छोटी सी चीज है कि आपका बच्चा नहाकर निकलता है, ठीक है, अब ये भी नहा लेंगे, ये भी नहा लेंगे, फिर मैं जाके बाथरूम क्लीन कर दूंगी। पर हम एक छोटा सा रख लेना कि अगर बच्चा अब नहा के निकला है, तो हम जाकर एक थोड़ा सा देख लें और बच्चे को थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट कर लें कि बेटा बकेट ठीक से रख लो, बेटा टॉवेल बाहर डाल दो, प्यार से हम पेशेंस से बोल दें। वो ओवरबर्डन होती है, चिड़ के करे कि कोई टॉवेल भी नहीं रखता है, ये भी नहीं करता है, बाथरूम कैसा फैला दिया, अभी मैं साफ करके गई थी, चिड़ के काम करती है वो। तो ये सारी चीजों में बेहतर होगा कि हम जो है वहां पर उसकी हेल्प करें, और वो लेडी ये एक्सपेक्ट ना करे कि मेरी सब लोग हेल्प करेंगे। तो मैं ये, इन लोगों को समझना चाहिए, आप खुद वुमन, आप खुद खड़ी हो, खुद जाकर उन अपनी फैमिली के मेंबर्स को We need to इकट्ठा guide करो, properly. दिखाओ Proper और guidance. बताओ। Right. आप Yes. उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, मैं इससे ज्यादा दिन नहीं इसको Yes, yes. कर पाऊंगी, और Right. आप उनकी भी बात ट्रिकी बन। एग्जैक्टली Yeah. बात वही होती है कि अगर हम अगर कुछ हेल्प चाहिए है तो हमें उसी तरीके से हमारे एक्सप्रेशंस या बातों से सामने वाले से डिमांड करना पड़ेगा डिमांड करना कि पड़ेगा। मुझे ये चीज करनी है एंड आई नीड योर हेल्प। और आई गेस फैमिली में तो हम हेल्प मांगने में भी हमें हिचकिचाहट नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली तो वही चीज है कि हम बच्चों से हम लोग अपनी कुछ हेल्प करवा सकते हैं या अपने स्पाउस को बोल सकते हैं कि प्लीज डू दिस। काम बांटिए, और मैनेजमेंट राइट चाहिए, राइट है ना, डिवाइड द वर्क। मैं तो डिवाइड ये द वर्क। बिल्कुल यस बिल्कुल। दैट्स मैंने राइट। करनी पड़ेगी, बजाय कि आप चिढ़ो, अपने हाँ मेंटल स्ट्रेसेस लो और अपने आप को फिर सफरर फील करो, है ना। मॉर्निंग में कुछ उठना है करने तो की बजाय आप पेशेंस के साथ, नहीं तो क्या होता है, फिर वो बहुत चिड़ के एक दिन निकलती है, चिड़ेगी, फिर सब 2-3 दिन हेल्प करेंगे, फिर वो ठंडी हो जाएगी, फिर सब अपने ढर्रे पे आ जाएंगे। तो बजाय दैट शुड बी इन अ रूटीन। हाँ, वो routine रूटीन होनी रहना चाहिए, चाहिए, Right. बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए। तो ये खुद हम जाकर अपनी बात को बोले, हस्बैंड उस चीज के लिए हेल्प करें, अपने पेरेंट्स को भी बोले, अपने बच्चों को भी बोले, तो एक मेरे ख्याल से एक बहुत सुंदर एनवायरनमेंट वापस घर में हो सकता है। और मैं फिर बच्चों आप लोगों को बोलूंगी कि आप टीचर्स हैं, हमारे जो बेसिक वेद हैं, हमारे रामायण, मतलब हमारी गीता, इतनी, मतलब गीता के उपदेश को अगर हम सिंपली, इतनी प्रैक्टिकल चीजें और प्रेजेंट सिनेरियो में तो बहुत ही काम की चीज है, तो हम ये सारी चीजें वापस अपने बच्चों को उनके अंदर डालें। क्योंकि जो हनुमान जी का जो चलती है, सीरीज चलती है, या कृष्ण भगवान की जो चलती है, गीता महाभारत की जो चीज चलती है, बच्चों को ये अट्रैक्ट करती है। तो हम
उस तरह से Yes. चीजें बच्चों को लेकर आ सकते हैं, Sure. So that was a wonderful session talking with everybody, especially Mrs. Chabra and Dr. Geetika. I, behalf of all-in-one team, I really thanks to you, both of you, that you took out some time from your busy schedule and you just gave us company in this wonderful discussion. And I hope हमारी जितने listeners हैं वो सारी चीजें बातें सुनेंगे और अगर उसको inculcate करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में भी ड्रास्टिक चेंज रहेगा, फैमिली में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट रहेगा और जो हम लोग नेगेटिव सारी चीजें सुन रहे हैं उसमें भी हम कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें ढूंढ लेंगे. So this is One like, more thing, all-in-one is, dear parents, I would like to give a very good message from the all-in-one platform. I thank both the dignitaries. मैं भी आप सब लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर पाई हूँ. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for joining us. Thank you. So Thank you so much. Bye-bye. thank you so much. Okay, bye-bye and have a nice time ahead. Thank you. Bye Thank you, ma'am. everybody. Thank you so much. Bye. Have a good time Good night. and good health. Stay home, stay healthy.